Because the first time we built that thing, we got acquisition offer. There was this guy called Lee Jiaoqi, 1.6 या 7 billion dollars का लिपस्टिक बेचा था 24 घंटे में. We understood the power of video commerce at that moment. If someone's in college and they want to start a startup, how can they find their idea? Continuous learning process है वो. Is it easy to start a startup? Welcome back. आज के एपिसोड में I am talking to Deekshit. He is from IIT Delhi and building his own startup. इस एपिसोड में मैंने उनसे वो सारे सवाल पूछे which can help you build your own startup if you are in college. How to find your idea? उस आइडिया को evaluate कैसे करते हैं? How to start working on your idea? Building a team, building an MVP, and more importantly, मैंने उनसे ये पूछा being a student, how you can raise funds for your startup. तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, लर्निंग्स अप्लाई करते हो, then this video has the potential to change the next 5 years of your life. Awesome. And one more thing, I am on a mission to hit 100k subscribers on this channel in the next 6 months and उसके लिए मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए. Even today, 91% of you watching my videos are not subscribed. So if you have ever enjoyed any one of my videos, learned something from them, please hit that subscribe button. It helps me massively. Awesome. I am Sanskar and you're watching The Sanskar Show. So just to give some context to the audience, you're from IIT Delhi doing BTech plus MTech degree and building your own startup, right? So my goal from this video, Dikshit, is if someone's in college or a school or a recent graduate for that matter, if they want to start a startup, we give them the whole process from your experience and then they can pick and choose and adapt their own process, learn some things. But हमारा मोटा मोटा गोल यही है कि आपकी जर्नी से they can get some value. Make sense? Yeah, sure. Perfect. So let's start at the beginning. Snowdify आपने कब लॉन्च किया, उसका आइडिया कब आया आपको, एंड मोर इम्पोर्टेंटली व्हाई यू थॉट कि हाँ यू कैन वर्क ऑन दिस थिंग. यार मतलब ऐसा था कि I mean Snowdify started around 1.5 years prior, and it was completely nowhere near to what we are building right now. So हम लोग पहले price comparison engine build किए थे. So what happens is Amazon, Flipkart, Myntra सारे पे manufacturers ही sell करते हैं, and people do buy a lot even if we find those clothes boring, right? So what we did was we built a comparison engine that maps products together so that एक single product का price आप तीनों platform से fetch कर सकते हो. So this basically saved upwards of 100-200 rupees for consumers. That was the initial build. So we started building it out there, and उसके बाद we went into the market, we analyzed उससे margins. मतलब business नहीं बढ़ रहा था उस पे. I mean, you can't build margins on margins. So we had to switch. Then we pivoted a bit. We ran through a research. उसके बाद we started working with small brands. And then we thought कि यार हमारा जो influence है, सब ही Instagram चलाते हैं आज के डेट पे, तो 60% purchases are influenced by Instagram. But the question is, why do we not purchase on Instagram then? One, cost high है, just because these brands spend a lot on advertising, वो high pricing भी रखता है. दूसरा बात ये भी है कि we do not feel the trust towards the platform because it was not built for commerce. So we thought ये gap को bridge करना. So I mean, then we went back to the dashboard कि यार बाहर के देश में कैसे हुआ है. And then luckily right at that time there was this guy called Lee Jiaoqi, China से, जिसने 1.6 या 7 billion dollars का लिपस्टिक बेचा था 24 घंटे में. लिपस्टिक? हाँ. So I mean, we understood the power of video commerce at that moment. We thought कि यार इंडिया में implement करता है. The first thing we did was
मोस्ट ऑफ दीज वेंचर्स जो वीडियो कॉमर्स में एक्सपेरिमेंट किए थे सारे हमारे कॉलेज के सीनियर्स ही थे, तो सबको कॉल लगाया कि यार क्या बीट है सब, एंड दे टोल्ड कि यार इट वाज नॉट द राइट टाइम, दे वर वे प्रायर टू द टाइम्स. सो एंड देन वी स्टार्टेड टेस्टिंग आउट कि यार कितना मार्केट है अभी. वी नो द मार्केट इज 2 or 3 years down the lane, but we've started building it right now so that we can be for that. ब्रो आपने बोला कि मार्केट इज 2-3 years डाउन द लाइन. सो व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग, इज इट एडवाइजेबल कि आप फ्यूचर को ध्यान में रख के बिल्ड कर रहे हो कि जो मार्केट 2 साल बाद आने वाली है उसके लिए आप अभी से बिल्ड कर रहे हो, आपके पास एक एडवांटेज है, क्या सीन है? So, I mean, I've made this mistake all my life. So, I mean, यार मैं जब IIT निकाल के अंदर आया उसके बाद IIT का क्रेज कम हुआ. एंड मैं जब हम लोग डॉग वॉकिंग, पहले हम लोग डॉग वॉकिंग सर्विसेज बेचते थे, तो डॉग वॉकिंग हमने बेचा, उसके ठीक बाद वो पिकअप हुआ. ये सारा तब हमने समझ लिया कि यार इस बार ये वाला गलती तो मैं नहीं कर रहा. We waited because the first time we built that thing, we got acquisition offer सीधा ही. So and then For we Spotify. yeah Okay. वो price comparison engine because it was hard to build. हमने टेक फिगर आउट कर लिया था, बट उसके बाद we took a stance कि यार business And what was the offer? Roughly, can you share? I mean about 500,000. We had no users. Wow. No, it was at 500,000. Yeah. Wow. मतलब $500,000 USD. So the thing is वो ऑफर लेना इज लाइक कि यार मैं नौकरी ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें बॉन्ड होती है 3 साल की. ओके. 3 साल मतलब मेरे प्राइम है ये. हाँ करेक्ट, बिल्कुल. मैं अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा तो कब करूंगा. सो आई वाजंट एबल टू टेक दैट ऑफर, एंड देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग अनदर थिंग. वी जस्ट अपलोडेड ऑन गिट, ओपन सोर्स कर दिया कि यार किसको भी चाहिए यूज कर लो. हाँ, एंड देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग दिस अदर थिंग. But the problem is इसमें ना to build a minimum desirable product, usually people call it MVP, but हम लोग उसे दूसरे तरीके से सोचते हैं. We try to build a minimum desirable product कि यार it should be better than what Instagram has right now. शॉप नाउ बटन पे क्लिक करते हो वेबसाइट खुलता है अंदर ही अंदर. अगर इससे बेहतर बिल्ड करना है, स्पेशली हैंडलिंग वीडियोस ऑन रिएक्ट नेटिव, सर दर्द है यार वो अलग. सो दैट इज व्हेन आई मीन वी अंडरस्टूड कि ये सारे फिगर आउट करने में हमारा 1 साल 2 साल लग ही जाएगा टू गेट इनिशियल यूजर्स. एंड इट इज मच बेटर दैट यू स्टार्ट बिल्डिंग एट फर्स्ट बिकॉज यू विल हैव सम लेवरेज ओवर यूजर्स. कल को मेरे को कंपटीशन आएगा, अब मेरे पास नेटवर्क इफेक्ट है ऐप में, सो आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट लूजिंग द एग्जिस्टिंग यूजर्स. करेक्ट. Just to add on the acquisition offer, वो आपको कैसे आया था? मतलब how did you get the visibility? Was it product hunt, Twitter, LinkedIn posts? क्या किया था आपने? सो ये हमारे जो सेगमेंट पे काम कर रहे थे, अर्न करो वगैरह ग्रुप्स थे. सो वी स्पोक टू अ फ्यू ऑफ देम एंड वहाँ से वन ऑफ आवर इन्वेस्टर्स टुक अस टू देम. सो आई मीन वी डिडंट एक्सेप्ट मनी फ्रॉम हिम एज वेल सिंस वी वर अबाउट टू discard that product anyways. So yeah. So bro, let's start at the beginning now. If someone's in college and they want to start a startup, how can they find their idea? So you start experimenting, and most of my friends build on top of Shopify. सारे वो I mean it does happen because that is the easiest thing to do. इसमें आपको ecosystem build नहीं करनी है, ecosystem बना हुआ है, marketing कुछ खर्चा नहीं है. When you take up bigger challenges and especially since you are young कि I mean it makes a lot of sense यार. आप कब रिस्क लोगे? 30-40 के उम्र में हम जाके ये बोलेंगे माँ बाप भी की थप्पड़ मारेंगे, इससे अच्छा पहले ही कर लो. अकेले हैं उसका it has its own advantages, right? So that is the only thing that I am trying to leverage currently. This is the only time I can fight against legends in the market. So how do you validate the idea कि यार ये आइडिया अच्छा है, इस पे काम कर सकते हैं, there is a market for it? इसमें एक बहुत अच्छा बुक है, सब वही मतलब anyone you ask for will say mom's test है, जो वो कोर बुक है. आई मीन वो बाइबल ही मान लो यूजर टेस्टिंग का.
सीधा जाओ, बंदे से पूछो कि क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स है, एंड आई मीन डोंट पुट योर सेल्फ इन द सेंटर ऑफ इट, डोंट एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट विल सॉल्व फॉर हिम. मतलब एट द एंड ऑफ द डे सेल्स गिव्स यू एन आइडिया. सो जैसे हमने ब्रांड ऑनबोर्डिंग चालू किया, वी गॉट around 700-800 brands onboarded in 3 months, 4 months. So तब आपको पता है कि यार ब्रांड साइड डिमांड है. 5,000 ब्रांड है मिंत्रा पे आज के डेट में, हमें 3 महीने में 700 ब्रांड मिल गया. सो आई मीन 11 years of journey we can cover in one. You're from IIT, राइट? अभी जब हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि स्टार्टअप, तो उनका फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये होता है कि यार व्हाट इफ इट फेल्स. तो इन योर केस you're from IIT, तो you have that cushion of कि जॉब तो लगी जाएगी. So is that true? Does that give you liberty to start a startup? I mean, initially it did, but down the lane it was very much true कि यार अभी जैसे जैसे हम काम करते हैं, वी स्पोक टू अश्नीर. पहले हमारा कंपैरेटिव इंजन में अश्नीर पैसा डालने वाले थे, ही शोड सम इंटरेस्ट. उसके बाद बहुत सारे फाउंडर्स है जो कनेक्ट करता है. उसके बाद इट फील्स लाइक यार दीज गाइस आर लुकिंग फॉर द बेस्ट ऑफ टैलेंट हु हैव ट्राइड समथिंग ऑन देयर ओन. Take Snodify for a case. If there are 2 candidates and I find one to be an ex-entrepreneur जो failed है, मतलब I obviously have a tilt towards him कि यार ये बंदा मेरे को मैनेज करना नहीं पड़ेगा इस बंदे को. So I mean people look at it as risk, but I feel कि यार this is the best thing that you can do other than यार मैं ये कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये वो. पढ़ तो सब लेंगे यार, दम होता है करने के लिए. See, very true. But that realization comes after you have actually done that startup. So how do you take that leap of faith कि नहीं यार करते हैं? मतलब टू एन एक्सटेंट ये होना पड़ता है यार. आई मीन सी, आई मीन मैं बता रहा हूँ ना, आई यूज्ड टू वर्क विद माय फ्रेंड. ठीक है, माय फ्रेंड्स वर द फर्स्ट वंस हु फाउंडेड अ वेंचर. IITD में हम फर्स्ट ईयर में थे, तब से वो चला रहा था. मुझे घंटा कुछ आता था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में. मैं बस ऐसे ही फ्रीलांस प्रोजेक्ट करता था थोड़ा बहुत पॉकेट मनी के लिए. बट मैं यहाँ आया, लकीली वाज लिविंग जस्ट अक्रॉस माई रूम. सो ऐसा हॉस्टल्स मिलते हैं, तो वहाँ पे ही टोल्ड कि यार हम ये कर रहे हैं, इफ़ यू वांट यू कैन कम जॉइन अस. एंड पहले दिन ही उसने मुझे सेल्स पे लगा दिया. हाँ, ऐसा सेल्स नहीं कि यार कॉल्स लेना है ये वो, ये डॉग वॉकिंग है. मुझे पता नहीं है कहाँ बेचना है. Exactly. एसडीए एक एरिया है. हम गए, हर दरवाजे पे नॉक करने लग गए. तो फिर पता चला आधे घर में कुत्ता नहीं है. Exactly बोलने वाला था मैं. फिर हम वॉचमैन को पूछे कि भाई कुत्ता होता है कि नहीं. ये उसको लगने लगा हम चोर है. चोरी करने के लिए उसी से पूछ रहे थे कुत्ता है कि नहीं. फिर अगले दिन आए हम लोग कोट सूट पहन के कि यार इस बंदे को ना लगे, क्योंकि यू कांट एक्सप्लेन कि यार हम ये कर रहे हैं. हाँ. एंड देन वी स्टार्टेड हिटिंग ईच एंड एवरी डोर. विदिन लाइक 2 or 3 days वी हिट ऑल ऑफ एसडीए. और हमने पहले 3 महीने में ऐसे 600 डॉग वॉकिंग मॉड्यूल्स बेचा था. तब मेरे अंदर वो जोश आया कि यार मतलब बहुत बार ऐसा होता है, लोग चेहरे पे बंद करते हैं. करेक्ट. ओ बिल्कुल बिल्कुल. आप कुछ भी खुद का स्टार्ट करोगे वो तो होता ही है. यू हैव टू स्क्रैप द बैरल जिससे आप निकाल पाओ चीजें. वो तो एग्जैक्टली. सो आई मीन वहां पे मुझे लगा कि यार ये लोग, आई मीन इट सीम लाइक इडियट सब बाहर से, बट मजा तो आ रहा है क्योंकि हमें पता नहीं है कौन है वो आंटी अंदर बुला के चाय पिला रही है. मैं तो उनको कुत्ते को घुमाने, एंड थिंग्स यूज्ड टू हैपन लाइक जो सर्वेंट्स है उन्हीं को वो लोग बोलते थे कि यार कुत्ता भी घुमा दो. सो उनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता था. हम उनके हाथ लेटर दे के भेजते थे कि हम कुत्ता घुमा लेंगे और इसका चार्जेस है. तो आई मीन फ्यू यूज्ड टू कॉल अस जस्ट बाय कि यार तू मेरे बंदा जो सो आई मीन इट हैपेंस. इट इज फन दैट वे, बट आई मीन या रिस्क है, बट एड्रेनलिन रश है. also what mostly people do is they think of building niche down service businesses. Like for example, let's say we have urban company. तो अब स्टूडेंट सोचते हैं कि लेट्स
make a platform where I can call plumbers. अब that is already solved, right? Urban companies already doing that. तो आप उसका ही एक फीचर लेके अपना पूरा एक ऐप बनाने की सोचोगे, वो नहीं चलने वाला है, राइट? कंज्यूमर ऐप्स में क्या होती है ना कि हम ही कंज्यूमर है, ठीक है। आप अपने माँ से बोलो कि यार मैं एक प्लम्बिंग सर्विसेज के लिए एक ऐप बना रहा हूँ, डाउनलोड करके रख लो। आप बोलेगी यार इससे अच्छा हनुमान चालीसा वाला ऐप डाउनलोड कर दे। यही इसके लिए मैं एक ऐप क्यों रखूंगा जब मुझे पता है मेरा प्लम्बर एक कॉल पे आ जाएगा। एंड एंड मोर ओवर इसमें मार्केट लीकेज है मुझे लगता है, इवन इन अर्बन कंपनीज के, कि जब भी आप मार्केट प्लेस बिल्ड करते हो कुछ चीज़ें हमें होल्ड रखना पड़ता है कि यार कंज्यूमर और जो मतलब सेलिंग साइड है, ये दोनों आपके बिना कनेक्ट ना हो। ये सारा गैप सीधा फिल इन हो जाता है। मैं 3 बार खरीद लूंगा, 3 लोग का नंबर मिल गया, मेरे को क्यों चाहिए यार। ये जब मेरे को इतना लॉजिकल ग्लिच दिखता है ना, तब मुझे लगता है कि यार थोड़ा और सोच सकते थे बच्चे, बिकॉज मतलब ये सारे is just around you thinking deep about your own product. And मतलब अपने दोस्त, आपके दोस्त खुद करते होंगे, मेरे खुद के दोस्त है जो प्रोडक्ट खरीदते हैं 200-300 के नीचे होगा, रिटर्न मारते हैं, उनको पता है अमेज़न नहीं आ रहा है, वापस वो प्रोडक्ट ले जाने, वो वहीं रख देगा, पैसा भी रिफंड कर देगा। इतना मार्केट लीकेज है और हम इंडिया में काम कर रहे हैं तो मतलब ये छोटा मोटा चीजें हमें सोचना पड़ता है। ओके, सो लेट्स से मैंने एक आइडिया सोच लिया, आई थिंक कि हाँ इस पे बिल्ड करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। सो हाउ डू आई बिगिन वर्किंग ऑन इट? बिल्ड अ टीम, बिल्ड एन MVP? यार इसमें सही ऑर्डर गलत ऑर्डर कुछ नहीं है, ठीक है, कि मैं टीम बिल्ड करके फिर प्रोडक्ट बिल्ड करूँ, ये वो कुछ नहीं है। इफ यू कैन बिल्ड द प्रोडक्ट योरसेल्फ, यार इससे अच्छा प्यारा चीज कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि आई मीन एट द एंड ऑफ द डे यू कांट एक्सपेक्ट एवरीवन टू वर्क एज डेडिकेटेड एज यू, ठीक है। एंड जितना हम सोच रहे हैं उतना हायरिंग इसी काम नहीं है, बिकॉज आई मीन वी कैन हायर समवट फॉर दैट मैटर, बट जब यू नीड द बेस्ट ऑफ टैलेंट टू वर्क डिलीजेंटली, यार इतना बेचना पड़ता है, इट हैपन्स हो, ठीक है। सो यार अभी मेरा को फाउंडर सुबह 10 बजे से अभी 8:30 तक उनका मीटिंग्स है, बैक टू बैक 10 मिनट कॉल्स होती है, टेक्निकल राउंड्स, तो वो दिन भर है करीबन। आज बस उनको मतलब 50-60 लोग को शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है। सो आई मीन इट हैपन्स हो, बिकॉज यार हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम लोग उसे फेक करना भी चाहते हैं। जैसे अभी मैं रिएक्ट नेटिव के लिए एक हायरिंग पोस्ट डालता हूँ कि 3,500 एप्लीकेशन है, बट उसमें से अगर आप देखेंगे कि कितने लोग रियली वर्थ इट है, तो मतलब 50-60 लोग निकलेंगे। एंड उसके बाद आती है कि यार आप जितना बेच रहे हो उतने से वो कन्विंस होते हैं कि नहीं, फिर उसमें से 10 लोग बचेंगे, उनमें से हमें चुनना भी पड़ता है। यहाँ तक आते आते आपके पास क्राइटेरियन नहीं बचेगा, यू विल, आई मीन इट हैपेंस सो दैट वी लूज अ लॉट ऑफ गुड कैंडिडेट्स दिस वे। आई मीन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, नॉर कुड दे डू। तब हम देखते कि यार जो बंदा डेस्परेशन दिखाता है काम के लिए, बिकॉज मतलब एट द एंड ऑफ द डे जब एप्लीकेशन वॉल्यूम ज्यादा है हमें ये लिबर्टी मिलती है। एट द सेम टाइम प्रोडक्ट मैनेजर के लिए मैं पिछले 6 महीने से ढूंढ रहा हूँ, एक अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर हायर नहीं कर पाया। सो आई मीन इट हैपेंस। सो आई मीन आई वुडंट से यू शुड लुक फॉर अ टीम, ठीक है, बिल्ड इट इफ यू कैन, ठीक है। जैसे बहुत कच्चा, मतलब मैं बता रहा हूँ ना आपको, अगर ये वाला ऐप बनाना था जो गाइड करने है, सो आप यूट्यूब चैनल खोलना, ऐसा नहीं है कि यार इसके लिए मेरे को कुछ सीखना है ये वो। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको कुछ करना है तो कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है वो। गोइंग ऑफ ट्रैक फॉर अ बिट, आपने बोला कि 3500 में से ओनली 50-60 एप्लीकेंट्स आर वर्दी जिनको आप हायर कर सकते हो, तो ऐसा क्यों है? मतलब
थोड़ा सा सिनेरियो ऐसा है, देखो 2 तरीके के हैं। जैसे हमारे कॉलेज में वी डोंट लैक गुड प्रोफेसर्स, ठीक है। बाहर दे डू लैक गुड प्रोफेसर्स फर्स्ट थिंग, एंड वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं सिखाते हैं, ठीक है। C++ सिखाते हैं, ये वो सिखाते हैं, भाई कहाँ काम आ रहा है। मैं खुद, अब मेरा DSA इतना अच्छा है, बट मैं इतना कॉम्पिटिटिव कोडिंग करता हूँ, इससे मेरा IQ बढ़ा है, पर IQ को कुछ अचार नहीं डाल सकते ना यार। मेरे को एट द एंड ऑफ द डे डेवलपमेंट करनी है। जब मैं कुछ सोचना है, इट ऑब्वियसली हेल्प्स, आई वुडंट से कि भाई टोटली यूजलेस है, बट फ्रॉम माई डेवलपर आई एक्सपेक्ट कि यार वो बंदे को डेवलपमेंट आए। मोस्ट ऑफ दीज गाइस हैव गुड लीड कोड रेटिंग्स, गुड हैकर रेटिंग्स। उसमें मतलब उनको नहीं पता कि क्या करना है ये वो। अब हमारे में वी हैव अलुमनी नेटवर्क्स, ठीक है। कुछ किसी का काम नहीं लग रहा है, ये सब नहीं लग रहा, ये लोग खुद से कुछ जुगाड़ करा के लगा देते हैं। सो आई मीन ये एडवांटेज है, बट बाहर ये एडवांटेज बहुत कम है। अब एंड ये ना टैलेंट सेट को भी बहुत डिग्रेड करती है कि जैसे आज के इंटरव्यूज, अभी सुबह मैं वहीं था, तो मैं खुद देख पा रहा था कि यार बंदे जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कुछ आई मीन डेव क्वेश्चंस पूछ रहा था, मेरा फ्रंट एंड वाला, वो बीच में ना सुनने का एक्टिंग कर रहे, गूगल कर रहे। यार बोलो ना कि नहीं आता, करेक्ट, मतलब मेरे को बिल्कुल। बेहतर है, बिल्कुल। उस बंदे को मैं ट्रेन कर लूंगा। वो जब बोलता है कि यार मेरे को आता है और गूगल करता है, और रिफ्रेश भी नहीं करेगा बंदा, एग्जैक्ट पड़ेगा। हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट में वी डू नॉट आस्क फॉर कि यार कोडिंग अराउंड ये सारा। एट द एंड ऑफ द डे आई नो कि यार तुम्हें चैट जीपीटी यूज करना है, मेरे को बंदा ऐसा चाहिए जो चैट जीपीटी अच्छे से कर पाए, राइट। सो आई मीन ये सारी चीजें हम एडवांटेज लेवरेज दे रहे हैं, बट इट हैपेंस हो कि यार अब भी वी हैव टू शॉर्टलिस्ट इतना कम। इज इट इजी टू स्टार्ट अ स्टार्टअप? इजी इन द सेंस, ठीक है, राइट। लाइक मतलब यार मजा आता है तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। अगर किसी को, बहुत लोग होते हैं जिनको मजा नहीं आता है, ठीक है, ये सारे चीजों से, उनको दिखता है कि यार धूप में जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, ठीक है। बट मुझे वो किक मिलता है कि यार मैं किसी के घर में घुस के कुछ बेच पा रहा हूँ, ठीक है। एंड एंड द फनीएस्ट थिंग इज, जब हम वो सर्विस डिसकंटिन्यू किए थे, हमारे कंज्यूमर्स लगातार 3 महीना कॉल करते रहे। आई मीन हम लोग 5,000 रुपये लेते थे डॉग वॉकिंग के लिए वगैरह, करीबन हमें 10,000 तक का वो लोग हर एक डॉग वॉकिंग के लिए दे वर रेडी टू गिव। कंज्यूमर खुद बोलना, ठीक है, कि यार मैं 2x प्रीमियम दे दूंगा। आई मीन इट डजंट मेक इकोनॉमिकल सेंस, बट इट शोज कि यार उसको वैल्यू डिलीवर्ड है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो आई मीन तब ना ऐसा लगता है कि यार हमने कुछ बनाया करा है। है। आई मीन इट माइट बी वेरी इनसिग्निफिकेंट कि यार करेक्ट। कुत्ता घुमा रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेरे घर पे तो यही बोलते हैं कि, मतलब मेरे घर वाले सपोर्ट करते हैं, बट रिश्तेदार तो यही बोलते हैं कि यार कुत्ता घुमा रहा है वहां जाके। एक तो मैं पतला भी था तब, तो वो पिटबुल, हम लोग पहले ऐसे वर्कर्स नहीं मिलते थे आसानी से, तो पिटबुल लेके मैं निकलता था, वो पिटबुल मुझे खींच के ले जाता था। सो आई मीन इट डज हैपन, बट व्हाट आई लुक एट इज कि यार ये फन है मेरे लिए, ठीक है। जब कोई इसे उल्टा सोचता है कि यार ये कुत्ता मुझे खींच रहा है, धूप आ रही है, ये वो, तब तो दिखेगा ही यार। वैसे तो मुझे उल्टा दिखता है, 9 to 5 में मुझे ऐसा लगता है कि यार बॉस जो बोल रहा है करना पड़ता है, ये वो, यहाँ वो फ्रीडम है, राइट। एंड दैट कम्स एट अ कॉस्ट कि यार वो 24 घंटे काम करना पड़ता है। वही। आपने फ्रीडम की बात करी, 9 to 5 की बात करी, इससे क्या होता है ना, बहुत स्टूडेंट्स या फिर फ्रेश ग्रेजुएट्स को लगता है कि वी शुड स्टार्ट अ स्टार्टअप। बस उनको वो क्रेज होता है कि स्टार्टअप करते हैं, स्पेशली अभी तो इंडिया में चल भी रहा है वो बूम एक। उनको ना तो आइडिया है और ना उनको कोई प्रॉपर पाथ पता है कि इस तरह से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इफ समवन्स इन दैट पोजीशन, तो वो क्या कर सकते हैं? मैं जब था ऐसे, मतलब मुझे भी लगता था, ठीक है, कि यार मैं कर रहा हूँ कुछ, बट मतलब इनसिग्निफिकेंट लगता है हमारा काम, ठीक है। कि
थिंग्स डू नॉट टेक अप, ठीक है। और आप देखते हो न्यूज़ में मतलब हर जगह भरा रहता था, मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल सब में फंडिंग न्यूज़, ये मतलब कौन यूनिकॉर्न बना रहा है ये वो। आई एम नो वेयर नियर टू इट। जब मुझे ये रियलाइजेशन आता है, आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि यार उनमें क्या है जो मेरे में नहीं है, ठीक है। आई मीन दैट इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट वी शुड आस्क। बट कुछ लोग क्या करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, राइट, कि यार हो क्या मैं करने लग गया, ये बड़ी बात लगती है उनको। आई मीन वो जब वो बुक बैठती है ना, यू कांट डू एनीथिंग टू समवन कि यार उसको बचाए ये वो। आई मीन आई फील कि वो बुक, आई मीन व्हाई शुड एलॉन मस्क वर्क दिस हार्ड व्हेन ही इज एट दैट हाइट, राइट। उस बदले में बुक है भाई, एंड वी ऑल एडमायर दैट, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि यार हम ऐसे ही एडमायर कर रहे हैं, करेक्ट। सो आई मीन इट मेक्स अ लॉट मोर सेंस कि यार थोड़ा इनसिग्निफिकेंट लगेगा, बट प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए अगर लग रहा है, ठीक है, तो तुम वापस रिस्क लेने में डर रहे हो। तुम 9 to 5 अवॉइड कर लिए, कुछ और चालू किए, बट दैट इज नॉट अ फिक्स्ड बॉक्स कि यार इसमें ही तुम्हें चलना है। करेक्ट। पेट केयर में काम किया हूँ, टेक में काम किया हूँ, कोई इन्वेस्टर आके पूछता है कि भाई तू कुछ एक सेगमेंट में काम नहीं कर सकता है क्या? मैं बोलता हूँ कि सर मुझे अच्छा लगता है, मैं सॉल्व करता हूँ। मतलब मुझे अभी तक हमने स्नूडिफाई जब से चालू किया, स्नूडिफाई से हमने सैलरी ड्रॉ नहीं किया है। सो आई मीन इन्वेस्टर बोल भी नहीं सकता कि यार मेरा मॉनेटरी इंटेंट है। उसको तो क्लियरली पता चल रहा है कि यार मेरे को मजा आ रहा है, मैं कर रहा हूँ, एंड पीपल लव क्रेजी गाइस। यू हैव लॉन्च्ड ओनली फॉर IIT दिल्ली कैंपस, राइट? तो ऐसा क्यों किया आपने? यार वो भी हमारा पूरा लॉन्च नहीं है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड इज, वही हम जो MDP वाला कॉन्सेप्ट बता रहे थे, we try to validate it without all of these products in it itself. So तब क्या हुआ, हम लोग वैलिडेट कर पाए कि ये चलेगा, ठीक है। ओके। आई बिल्ड दैट कन्विक्शन फॉर माई सेल्फ। तो मैं बेच पा रहा हूँ इन्वेस्टर को, वी ब्रॉट इन सम गुड गाइस, वी आर बिल्डिंग इट, एंड हमारा आई मीन वी आर एट द फाइनल स्टेजेस। अभी डिबगिंग बस बाकी है जो मेरे को करनी है, बट वेरी सिंपली ये सारे सोशल मीडिया एप्स में, ठीक है, हमारे ऐप में भी एक सोशल मीडिया कंपोनेंट है, ठीक है। पीपल वॉच रील्स, ठीक है, दे कैन शॉप एज वेल, दे कैन सर्च एंड शॉप प्रोडक्ट्स, बट ये भी है कि दे कैन टेक्स्ट सी। तो तब ना यू शुड नो ईच अदर ऑन द ऐप, ठीक है। अगर आप इंस्टॉल करते हो, आपकी कोई और दोस्त नहीं है, ठीक है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। सो ये नेटवर्क इफेक्ट बोलते हैं। सो जब नेटवर्क इफेक्ट आपको चाहिए, यू शुड लॉन्च इन स्मॉल कम्युनिटीज, ठीक है। सो लेटेस्ट से अभी हम IIT दिल्ली में कैंपस को मतलब पूरा फेंस करके, जियो फेंस करके, जस्ट लाइक फेसबुक, राइट? मतलब या हाँ। सो बाई कैंप, आई मीन कैंपस के बाहर डाउनलोड नहीं होती है, यू कांट क्रिएट एन अकाउंट। कैंपस के अंदर अकाउंट क्रिएट करके यू कैन यूज इट एनीवेयर। सो इससे क्या होगा कि लोग एक दूसरे को टेक्स्ट कर पाएंगे, एंड पीपल नो ईच अदर इन अ कैंपस, राइट। ये मेट हो, कोई भी कैंपस हो, निफ्ट में लॉन्च कर रहा है, उसमें भी यही है। सो कैंपस बाई कैंपस हम लोग मैट्रिक्स अच्छे से देख पाएंगे कि यार 1000 लोग का बैच है, 1000 लोग में अगर अभी पिछले बार जब हम लॉन्च किए 300 लोग डाउनलोड किए थे। सो हमारा जो आई मीन एंट्री रेट है कि यार परसिवेशन है, वो 30% है। अब इसमें से ड्रॉप ऑफ रेशियो बहुत कम था, बिकॉज वन वाज द रीजन कि यार ये सारे एक दूसरे को जानते थे। एंड जब मैं इसे ओवरऑल लॉन्च करूंगा ना, तब मेरा रियल मैट्रिक्स हिट होगा, ठीक है। सो आई मीन इट इज गुड टू हैव सम स्टेबिलिटी, ठीक है। जब बड़ा प्रोडक्ट बना रहे कि यार एक वेरिएबल को मैं रोक लेता हूँ कि लोग अगर एक दूसरे को जानते हैं तो कैसा यूज करते हैं, एंड देन ऑब्वियसली यू सॉल्व फॉर ऑल अदर थिंग्स, एंड देन ओपन अप दिस वेरिएबल कि यार अब लोग किसी को नहीं जानते, अब कैसे दोस्तों बने होंगे। एंड व्हाट डज स्नूडिफाई डू? ये तो पूछा ही नहीं मैंने कि वो एग्जैक्टली करता क्या है। सो यार वही है, ठीक है, कि ऐसा ही सर इंस्टाग्राम पे यू रन थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड यू डू नॉट परचेस इट ड्यू टू ट्रस्ट इश्यूज।
So what we do is Instagram like platform ही है, ठीक है. It is just that you have a marketplace layer on top of it, ठीक है. So if you want to casually shop or binge watch, ठीक है, ये सारे पर्पसेस के लिए ये ऐप है. So आप रील्स देख सकते हो, उनमें ही प्रोडक्ट्स टैग्ड होते हैं, वहाँ से यूजर्स कैन मेक अ परचेज. इट इज जस्ट दैट यहाँ पे ट्रस्ट वैल्यू के लिए वी आर हियर टू क्रेडिबली, आई मीन मेक द ट्रांजैक्शन मोर क्रेडिबल, एज सिंपल एज इट. इससे क्या हो जाती है कि ब्रांड्स हमें, मतलब वी इनेबल अ जीरो कॉस्ट मार्केट प्लेस, तो ब्रांड्स को कुछ भी देना नहीं पड़ता है एज अगेंस्ट टू Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सारे. यूजर को प्रोडक्ट सस्ते में मिलते हैं. एट द सेम टाइम ब्रांड्स गिव लाइक 10 to 50% इन डिस्काउंट्स. सो वो कैशबैक्स देते हैं जो यूजर वीडियो क्रिएट करने पे वो लोग रीइंबर्स करते हैं. सो ये दोनों साइड के लिए बहुत मतलब बड़ा एक कॉस्ट सेविंग भी होता है, एंड दूसरा साइड के लिए वो आई मीन इट प्रमोट्स होम ग्रोन ब्रांड्स इन इंडिया. What if you have similar services or apps or platforms to your business? लर्न फ्रॉम द, बिकॉज आई मीन हमारे लिए प्रॉब्लम यही था, ठीक है, कि जितने भी लोग आज तक वीडियो कॉमर्स में काम किए हैं, देव प्रूवन कि यार ये सारा चीज काम कर रहा है, ठीक है, जो हम लोग तय कराए, ठीक है. बट इट इज जस्ट दैट वो बहुत छोटा मार्केट में काम कर रहा था, बिकॉज पीपल डिडंट, मतलब वो लोग क्या करते थे, वीडियो कॉमर्स बस बिल्ड किए थे कि यार यू कैन स्क्रॉल थ्रू रील्स, फाइंड प्रोडक्ट्स, रिव्यू डालोगे तो कैशबैक मिलेगा, ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट था. बट इसमें जो चैट फीचर्स है, मैसेजिंग, ये सारा इनेबल करता है कम्युनिकेशन इन बिटवीन यूजर्स, ठीक है. आप किसी को कुछ रील भेज सकते हो, ये सारा. अब क्या है, ये एक फन एंड एंगेजिंग एक्सपीरियंस बन जाती है, रादर दैट कि यार ये ट्रांसैक्ट की मैं एक वीडियो डाला, मुझे पैसा मिल गया, ठीक है. इट इज मोर ऑफ अ सोशल एक्सपीरियंस कि यार मैंने आज ये टैब खरीदा, ये खरीदा, और लेट अस से दिस पैंट इज फ्रॉम ब्रांड दैट इज ऑन बोर्डेड. सो हम लोग देखते हैं कि यार ये हमने खरीदा पहना, आई हैव जस्ट ड्रॉप्ड अ रिव्यू एंड आई हैव गॉट 30 or 40% डिस्काउंट ऑन इट, कैशबैक मिल गया. अब अगले परचेज में वही यूज कर रहा हूँ, राइट. सो अब इट इज मोर ऑफ कि यार मैं मेरा ब्रांड वैल्यू और खुद का मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, ये सारे एट द एंड ऑफ द डे पीपल लव टू शो ऑफ, ठीक है, कि आई मीन आई पर्सनली डू एंड पीपल डू. सो आई मीन इट इज जस्ट अ मीडियम कि यार यू कैन डू इट चैनलाइज्ड. अब मैं, अगर मान लीजिए आपने ये टी शर्ट को एंडोर्स किया, अब मैं वापस आऊँगा टी शर्ट खरीदने वाला हूँ, अब मेरे को दिखेगा कि यार किस किस ने क्या क्या बोला है. बिगेस्ट इशू बीइंग कि यार मैं मिंत्रा पे ऑर्डर करता हूँ तो दिखता कुछ और है, मिलता कुछ और है. तो अब 4 लोग ने बोला है कि यार ये अच्छा प्रोडक्ट है और ये चीज़ें हैं, सो इट हेल्प्स कि मैं रिटर्न रेट्स कम करूँ, मैं आई मेक वाइजर चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ बाई. More importantly, like for a platform like yours, there is server cost and everything. So as a student, how do you keep it running if you're not funded? हमारा पहले फंड हिट हुआ अभी 2 महीने मैक्स लगे हमने, बट आई मीन उसके पहले हम लोग एक साइड सेगमेंट भी बनाए थे. यार मतलब बहुत कच्चा सोचना पड़ता है, ठीक है, कि यार मुझे पैसा चाहिए ये चलाए रखने के लिए, ठीक है, अब मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा, और एट द सेम टाइम आई शुड नॉट बी मच फार फ्रॉम दिस ओन बिजनेस. किया हम लोग, क्या किए, शॉपिफाई वेबसाइट बनाना चालू किए ये सारे ब्रांड्स के लिए. पहले वेबसाइट मैंने बनाया, उसके बाद हम लोग ने टीम बनाया कि यार डेवलपर्स होंगे जो सीधा सीधा ऑर्डर आएगा, वी सेल देम दिस, एंड वहाँ जब ट्रांजैक्शन के बीच में उनको कॉन्वर्सेशन का गैप मिलता है, इसे कि यार ऐसा एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहा है, आप यहाँ आ जाओ, पैसा डालो. वहाँ से ही हमें बहुत सारा इन्वेस्टर कनेक्ट्स मिलने लग गए. दे लाइक द आइडिया, बिकॉज यार आज के डेट पे अगर आप ब्रांड चलाते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, तो यू नो कि यार बहुत रिटर्न रेट्स है, बहुत हाई एड कॉस्ट है, ये सारा. सो दीज गाइज वर क्रेजी अबाउट द प्रोडक्ट. तो वहाँ से वी स्टार्टेड सॉल्विंग दिस. अभी आके मतलब इस महीने हमने बंद किया है वो बिजनेस. सो
for the last 6 months we did around 4 or 5 lakhs each month in profits वो सारे businesses से. And can students raise funds and that too for non-released products? मतलब how's that process? Easy, hard? क्या उसमें? उसका नाम मैं भूल गया. There is one founder, Maeve Health का founder है. I mean I'm a big fan of his philosophy around fundraise. ठीक है. He says कि यार सबसे ज्यादा अच्छा valuation you get it for products like Facebook. ठीक है. And India funds Zara kind of products. ठीक है कि यार कितना cash flow है, कितना profits है. ठीक है. So it becomes hard, but मतलब the valuation premium solves for all of it. ठीक है. So and at the end of the day मेरे को बहुत गाली खाना पड़ा है, but ऐसा नहीं है कि it is not totally कि यार ट्रैश में चला गया ये वो. ये सीन मतलब यूएसए वगैरह पे बेटर है. मतलब इन्वेस्टर्स टेक अ लॉट ऑफ रिस्क, बट इंडियन इन्वेस्टर्स अभी उस स्टेज पे नहीं है, राइट? सो it does happen, but yeah, I mean we have to accept कि यार each business has its own challenges. ये मतलब हमें सेक्सी लग सकता है कि यार घर बैठे बैठे ऐसे ऐसे, but I mean to reach from these guys, convincing them is another level of headache. So I mean that is what I signed up for. So how many hours do you work in the day? यार ऐसे मैं गिनता तो नहीं हूँ यार. जैसे मतलब अप्रोक्सीमेट मैं 5-6 घंटे सोता हूँ, इसके अलावा मैं काम ही करता हूँ. हाँ मतलब यही है यार. मैं कुछ और कॉलेज तो अभी है नहीं. ठीक है, अगर जाना भी होता है मैं एग्जाम के लिए बस जाता हूँ, वो भी मतलब डिग्री निकालने के लिए करना पड़ता है. बट या उसके अलावा मैं दिन का 15-16 घंटे इफेक्टिव तो मैं 8-9 घंटे दे दूंगा. उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बाई इफेक्टिव आई मीन यार इन माई मोड वाला इफेक्टिव. How much of that is learning? नहीं, आई डू नॉट डू दैट इन माई वर्क आवर्स, बट आई मीन आई कंसिडर इट माई आई मीन स्पेशल वर्क. यार मेरे को ये आउट ऑफ वर्किंग आवर्स करना पड़ता है, बिकॉज मतलब मैं वो एनालिसिस पैरालिसिस में चला जाता हूँ. ठीक है कि यार ये सीख लिया, क्या पता इसमें एक और चीज़ आ जाए जो मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये भी सीख के करता हूँ. ये एनालिसिस पैरालिसिस बहुत बीटी वाला चीज़ है. सो आई डू इट एट नाइट कि यार मैं सो रहा हूँ, 2 घंटे कोई पॉडकास्ट चला लो, ऐसे ही सो जाओ. सो आई मीन आई कीप इट सेपरेट कि यार लर्निंग होना चाहिए, बट एट पर्सनल टाइम. Work is different. How do you learn? Books, articles, Yeah, videos? I mean blogs, a lot of blogs. और इसके अलावा मैं बुक्स पढ़ता हूँ, बट आई मीन मोस्टली मेरे को जो कंटेंट चाहिए वो ब्लॉग्स में ही है. हाँ, सो आई मीन या Because why? What do you read? जैसे मतलब मोस्ट फेमस तो पीजी के ब्लॉग्स ही ये सारे पढ़ते हैं. मैं एंड्रू चेन फॉलो करता हूँ. सो आई मीन और लेनीस करके एक पर्सन है, सो प्रोडक्ट पे लिखते हैं. आरती रामास्वामी आई गेस. आई मीन वो भी ऐसे. आई मीन आई रीड अ लॉट ऑफ कंज्यूमर कंटेंट, सो सिंस आई एम बिल्डिंग फॉर इट राइट नाउ, सो माई फोकस इज कि यार इसके अराउंड जितना भी ब्लॉग्स है, फ्यू ब्लॉग्स रिटन बाई फेसबुक्स फर्स्ट फ्यू एम्प्लॉइज, उसमें वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि यार कैसे था स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह. Dikshit, what's the true picture of running a startup and managing your college in India from the Indian student perspective? यार हाँ मतलब सिर्फ अब जो पूछ रहा है तूने, यार मैं क्या बताऊँ. देखो ऐसा है हमारे, मतलब आई फील इट इज मच इजियर टू डू इट when you are not from an IIT. ठीक है, because I mean people care less I guess कि यार तुम क्लास हो रहे हो वगैरह वगैरह. I mean प्रॉक्सी लग जाती है. ये तो मुझे लग रहा है हर कॉलेज में होगा, बट ये एडवांटेज है. ठीक है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ पेपर्स कंपैरेटिवली बहुत इजीली बनता है. हमारे में थोड़ा प्रोफेसर्स को बहुत राइट्स है, बहुत पावर्स है. ठीक है, तो वो लोग थोड़ा
मतलब दे ट्राई टू थिंग्स अप, ठीक है, कि जैसे मैं बताऊं, देयर इज वन प्रॉफ, ठीक है, जो मतलब स्टोकेस्टिक वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टोकेस्टिक्स। उसमें ऐसा था कि कुछ 50 50 मार्क में मेरा 34-35 था, ठीक है। मैं आई वॉज डूइंग प्रेटी गुड, ठीक है, कि हमारे यहाँ बोलते हैं 80 लग जाए, अच्छा, कि आई मीन ऑन अ 10 स्केल, कि भाई यू विल गेट 8 ग्रेड ऑन दैट सब्जेक्ट, ठीक है। 80 लगने वाली थी, एंड दैट गई। उसके बाद मैं गया नहीं था मेजर पे, कुछ ऐसा ही कुछ काम था, मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के दिया। उसके बाद स्टोकेस्टिक वाला पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट ऑफ एग्जाम, उसमें उसने 50 मार्क का एग्जाम था, मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मुझे पता है कम से कम 4 क्वेश्चन सही है उसमें से, और उसने मुझे दिया 3 मार्क। सो आई मीन, एंड यू कांट क्वेश्चन इट, कि यार तुम किससे जाके क्या बोलोगे, वो बोलेंगे प्रोफेसर का डिसीजन फाइनल है। अब मैं क्या बोल, जाके उससे लड़ू, भीख मांगू, बोलूंगा ठीक है यार कोई ना, अगले बार देख लूंगा। होती है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे यू शुड प्रायोरिटाइज कि यार आपको क्या करनी है, एंड इट फील्स कि यार एट द एंड ऑफ द डे, मुझे तो ऐसा लगता है कि अनलेस एंड अनटिल यू पुट योर नॉलेज टू वर्क, ठीक है, तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। आप सीखते जा रहे हो, उससे कुछ घंटा कुछ नहीं हो रहा है, राइट। आई एटलीस्ट ट्राई कि यार कहीं तो अप्लाई करो, ठीक है। अब डेटा माइनिंग एक कोर्स है, जो मतलब मेरा पूरा धंधा डेटा माइनिंग है, ठीक है, पूरा ML ही है। जिस जिस सब्जेक्ट का प्रॉफ ने मुझे, मेरा मतलब हम लोग फंड रेज कर रहे थे, शायद एक लास्ट एग्जाम मेरा ऐसे था कि मैं पास हो गया था उस कोर्स में। सो असाइनमेंट कॉम्पोनेंट होती है, मुझे ज़्यादा मतलब नहीं होता है, ठीक है, कि यार पास हो गया, चिल्ल है। अब वो बंदा मुझे बोला था कि वाइवा थे, तो मैं बोला सर आप वाइवा का मार्क काट लीजिए, जो भी असाइनमेंट का है वो दे दीजिए, क्योंकि मैं तो बाहर हूँ, ठीक है, मैं कुछ बैंगलोर में था। मैं बोला कि यार तुम जो देना है दे दो, यार मेरे को ऐसा नहीं है कि आप टॉप मार्क दोगे। उसने मुझे 0 दिया सीधा। 25 में उसने बोला 5 मार्क वाइवा का है, और सीधा 0 दिया। और अगले दिन मैं आया, मैं पूछने गया कि क्यों ऐसा किया आपने मुझे, मतलब आपको अगर टेस्ट करना है कि मैंने किया है खुद से, तो आप पूछ लीजिए। अभी आपके पास, उनके पास अभी भी है रूम टू चेंज, ठीक है। पर बंदे का ईगो हर्ट हो गया, वो मुझे हाथ पकड़ के खींच के लाया बिल्डिंग से बाहर। मैं बोल दिया कि यार मेरे को बीक नहीं मांगना है। असाइनमेंट मेरे को इतना फुद्दू सा असाइनमेंट है, मैं कर सकता हूँ खुद से। क्या मतलब ये होता है, बट at the end of the day you'll have to come across all these haters यार। यार ये तो बहुत कम है, बहुत तगड़े तगड़े प्रॉफ है यार। एक है करके, सब लोग उसको गाली देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ था कि हमारे सीनियर वाले बैच में 120 के क्लास में 90 बच्चों को फेल किया था उसने। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि यार ये एक तो बहुत मैथमेटिक्स में डेफिनेशन वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, जो किसी भी बच्चे को पसंद नहीं आती। बिल्कुल। अब उसने एवरेज उसका क्लास का कुछ 12 या 13 था, ठीक है, और पास मार्क होती है 30। 100 में से हाईएस्ट उस बैच में था 27 या 28। अब मतलब उसके लिए अलग रूल्स उसने बनाया खुद, और उसने 3-4 बच्चों को पास कर, मतलब थोड़ा बच्चों को पास करके बाकियों को फेल कर दिया था। अब वो प्रॉफ मेरे मेरे कोर्स ले रहा था, तब ऐसा ही हुआ था कि मतलब मैंने कुछ उसको, मैंने बोल दिया कि सर मैं पहले हाफ में मार्क ला दिया था, आप इसके बाद देख लीजिए, क्योंकि मुझे लाना 30 होती है। अभी मैं क्लास नहीं जाता हूँ तो 2 ग्रेड डाउन होती है, ठीक है। तो अगर आप 30 लाते हो तो चौगी लगती है, 4 सीसी, एंड उसमें से 2 कम होती है तो फेल हो जाओगे, ठीक है। तो मैं लाता हूँ चग्गी ताकि 2 कम हो जाए और चौगी लग जाए।
उस बंदे ने ऐसा ही कुछ कांड किया कि मतलब उसने उसमें भी रूल्स चेंज कर दिया कि सीधा अगर आप फाइनल एग्जाम नहीं देते हो तो फेल है। ये ऐसे ही मैं हर एग्जाम में दो बार लिख चुका हूँ भाई। वो होता है, मतलब कुछ प्रोफ्स यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड ऐसा है, एटलीस्ट बाहर ऐसा होती है ना कि पेपर कोई और सेट कर रहा है, चेक कोई और कर रहा है। यहाँ पे सब एक ही इंसान है और उसको आपका चेहरा पता है, सो वो मजे ले लेते हैं भाई। So let's move to the end of our conversation. So, from your experience of building multiple products, working on multiple startups, why do you think products fail? प्रोडक्ट्स फेल बिकॉज यू डू नॉट रियलाइज पीएमएफ, ठीक है, या फिर योर कन्विक्शन फॉर्म्स मच प्रायर टू और द मार्केट सेज, ठीक है। जैसे आई मीन बाईजूस का केस है, ठीक है, आप स्केल कर लिए, ठीक है, बट पीएमएफ नहीं है, ठीक है। और पीएमएफ इज समथिंग दैट चेंजेस विद टाइम, ठीक है, कि यार आज ये मार्केट मेरा सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, बट 10 साल डाउन द लेन इफ यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ, ठीक है, वो थ्रो ऑफ करेगा, ठीक है। सो ये सारे चीजें से प्रोडक्ट फील होती है, कंपनीज फील, ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स फील, ठीक है। एंड one other thing is, I mean, if you do not have a solid culture, that I mean, I realized right now, ठीक है, कि at the end of the day, it is not Deekshit or Sheetal who is going to do things, ठीक है, कि it is a structure, ठीक है, and you will have to delegate things to people. And if you aren't confident about people doing their job, ठीक है, तो probably when you rest, ठीक है, कि यार मेरे को हो गया, मैं इतना दूर चला के आ गया, तब कंपनी डूबने लग जाएगी, राइट। सो आई मीन ये दीपेंद्र सर बोलते हैं कि मतलब अभी रिसेंटली उनका रिलीज हुआ था एक पॉडकास्ट, उसमें वो करीबन 11 साल से चला रहे, 2011 से फूड पांडा से चालू किया था ना, 11 क्या 14 साल हो गया, एंड ही गॉट हिज फर्स्ट वेकेशन अभी अभी। तो आई मीन इट टेक्स इट यार, मतलब इट्स हार्ड, बट आई मीन इफ यू डू लव इट, आई डोंट थिंक आपको वो प्रेशर महसूस भी होगा वही। Awesome. On that note, I think it's a good time to end this conversation. Awesome, Dikshit. I loved it and I enjoyed it. And honestly, इस podcast से मुझे बहुत मजा आया and I hope audience को भी उतना ही मजा आया and they get something out of it. Thank you so much. Yeah.